जा सकता है। So Audacity, yes. Let me share the screen. सर Yes. सर वर्जन जो मेरे पास वो 4.2 है, 2.1 मिल नहीं रहा था। अच्छा, एंड उसमें कोई आपको इंटरफेस में कोई मेजर डिफरेंस तो नजर नहीं आया? नहीं सर, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो स्टेबिलिटी की बात है, सिर्फ इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। मैंने टोल्ड यू लास्ट टाइम के 2.8.2 is far more stable, one of the most stablest versions of Audacity, but it's perfectly all right if you want to work with the 4 point something, it's all right. Acha, so when we start working with the Audacity, first of all, what we have to do, we have to import any audio. I just have to click on import and then click on audio. When we click on audio, I have a few audios with me, like I'll use this one. And so my audio is here. So last time, I just recap things. Just briefly. So basically, last time when we were working on it, I just told that okay, whenever we are importing a sound, generally there are two types of sounds. One is called as mono sound, and second one is called as stereo sound. Mono sound means which works on a single channel, which works with a single speaker, which generate the voice only वन वे, यानी हमारे पास सिर्फ जो है जो उसकी जनरेशन होती है आवाज की, सिर्फ एक तरफ आवाज जो है वो जनरेट हो रही होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टीरियो, तो स्टीरियो में आमतौर पे ये होता है कि वी हैव टू चैनल्स, समटाइम्स 4 चैनल्स, समटाइम 8 चैनल्स, एंड इट डिपेंड्स कि आपके पास कैसे है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस the cinemas, the newest cinemas like the Cine Star and other cinemas, so you might have noticed कि जब वहाँ फिल्म शुरू होती है तो वो उससे पहले वो ये आपको बताते हैं कि यू कैन हेयर साउंड फ्रॉम हेयर और फ्रॉम हेयर। वो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जो है वो अपने लगाए होते हैं स्पीकर्स जो है, एंड यू कैन लिसन साउंड्स, सो इट क्रिएट्स मोर रियलिटी टू इट। सो ये हमारे पास जो है इसका जनरल्स है। हमारे पास 2 चैनल्स इसके हैं, बट वी वर्क विद इन वन गो। हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं तो वो दोनों चैनल्स इकट्ठे होते हैं। जाहिर है इट्स डिफिकल्ट कि एक चैनल जो है वो कम हो, एक चैनल ज़्यादा हो, बट वी कैन डू दैट। So what we can do, हमारे पास ये different किस्म के जो है, we have different types of selection tools. One is the selection tool, and what we can do with the selection tool, we can select our start and the length of that selection. So what I can do, I can just take, I'm just selecting the sound, and you can notice the starting point of my sound is 14.950 seconds. See this is how precise it is, this is how accurate it is. Okay, you can even get into the milli points of the seconds, you can select that also. So what you have to do, if you want to start selection from a specific point, you can just write the number here, like it's 0 hours, 0 minutes, and then few seconds. Same goes here, it's about minutes. First of all, it's about hours, and then about minutes, and then about seconds. That's why the modern movies, when they dub the movies, generally there are no lags. When we used to see the older movies, जब हम पुरानी movies देखते होते थे, there are lags. आप कभी-कभी notice करते थे कि वो आवाज़ आगे पीछे हो जाती थी, आवाज़ आगे चल रही है, sound पीछे चल रही है. So now this is very difficult to notice कि अब हमारे modern age में ये काम बहुत rare होता है. और वो डब करते हैं, डब करने के साथ जो है वो बिल्कुल, क्योंकि precisely we can select our part of seconds even, so we can put sounds exactly where we want to put that. So this is our selection tool, and this is basically the move tool.
So what we can do, officially it's a time shift tool, but I usually ask as a like take it as a move tool. So what we can do, we can just click on that and you can move your complete sample. So you can see that I am moving my complete sample. It means my sound will start from 15 seconds. Before 15 seconds, it's a pure silence. There wouldn't be any sound. जब हम शुरू करेंगे तो शुरू में कोई साउंड नहीं होगी. ये 15 सेकंड से जो है हमारे पास साउंड शुरू हो रही होगी. तो हम इसको क्या करते हैं, we can just put it here. So this is how our sound starts. Then we have a multi tool. This multi tool mod means that you can select and you can move with the same tool. This tool can on two different things. See, you can even select, and if you want to move, see this another type of cursor. You can see this cursor is basically the tool. So this is how you can use this tool as well. But I prefer in general usage you can use the selection tool, and if we need to move something, we can use the time shift tool. Acha, then this envelope tool. This envelope tool is very interesting. Acha, first of all, I just want to play a sound, so you can notice the difference between जब मैं इसको change करूँगा. So this is the sound. मुझे बताना आपने आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही. आवाज आ रही है? जी सर. For this purpose, what we can do with the envelope tool. I just have to click on the envelope tool, and now you can add the points. This is my first point. So I am just scrolling up. So this is my point, and then here, see, I can like make it louder, or I can concise it to the low version of the sound. I just try to be this and this. So whenever I click on the timeline on a specific point, you can notice that the specific area has been selected. वहाँ जो है हमारे पास ये dots आ जाते हैं, and then we can treat that dots like ये हमारे पास way points हैं जिनको हम up या down कर सकते हैं. So मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ. ये मैंने कर दिया. Now we can see that how it affects our sound. Rather, we can hear that. So you can notice that the smaller part of the sound is basically with the lower pitch or the lower level of sound. And अगर आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा तो फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं जो जहाँ मेरा इस वक्त पॉइंटर है जहाँ LR करके दिया हो, ये हमारे पास पिच है जो कि साउंड की नज़र आ रही है. देखो जब इसे मूव करता हूँ, अब ये जो मैंने शॉर्ट किया है वो वाला आप देखना वो रेड में नहीं जा रहा, वो अप टू 6 तक का कुछ पॉइंट है, वो जहां तक वो जाता है हमारे पास. और जो पीक मैंने बनाई थी वो आप देख रहे हो कि वो हमारे पास जो डेसिबल था वो उसके हाई होते जा रहे हैं, जो पीक हमने क्रिएट किया है इस पॉइंट के ऊपर. सो साउंड को अगर ट्रीट करना हो तो वो ऐसे भी ट्रीट करते हैं, और आमतौर पे जो हमारे सिंगर्स होते हैं वो सब साउंड ट्रीट ही करते होते हैं. अब तो खैर हमारे पास डिजिटल सब सिस्टम्स आ गए हैं, गा रहे होते हैं, और इवन दो इफ दे आर लाइव तो वो जो साउंड एडिटिंग वाले इंजीनियर्स होते हैं दे कैन डू द वंडर्स विद द सॉफ्टवेयर. एंड मैंने आपको बताया था कि दिस इज वन ऑफ द प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स जो कि जनरली पीपल यूज फॉर देयर वर्क. Now, few effects which can help us. अच्छा, अब ये एक पेंसिल टूल रह गया. पेंसिल टूल जो मैं सबसे एंड में बताऊंगा, मुझे याद करवा देने 5.
So now there are different effects, or when we talk about different effects, what we have to do, we can select the sound if we want to. Let's say कि मैं कहता हूँ the first 15 second should be uh, जो हमने डिस्कस भी किया था, rather first 10 seconds जो है should be fade in, यानी it shouldn't come up with the full sound. So I just have to click on the fade in. जब मैं fade in पे click करता हूँ तो देखो हमारे पास वो एक fade in का impact आ जाता है. अब ये impact जो है, it's very important. Generally what happens कि when they are starting a song or starting a music, you might have noticed that it started with the lower notes, and they actually frequently updating the notes. So if I play this slow, so this is how a fade-in can work, and the most interesting part is, which I like most, is that you can put fade out straight after that. It's not necessary that you have to go to the end of your sound. You can put the fade out anywhere you want. Acha, so what we can do, I can just click here and you can see fade in. So this is fade out. और जाहिर है उसके बाद हमने कुछ किया नहीं है तो वो वैसे ही चलता रहेगा. So it's not necessary. वैसे तो आमतौर पे इसका ट्रेंड तो जाहिर है यही है कि start with fade in and end it with fade out. If it is music, अगर वो सिर्फ म्यूजिक है, अगर साउंड है तो फिर उसका इम्पैक्ट तो थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है, उसको हम अपना फेड आउट कर देंगे, बट हम कर सकते हैं. मैं भी साउंड के साथ भी आपको करके दिखाऊंगा ये. अच्छा, इसके बाद व्हाट वी कैन डू, we can click on effect and then we have the options. We have amplify, we have bass and terrible, we can change the pitch, we can change the tempo, this, that. So if I click on the amplify, you can see, acha, whenever we are talking about the amplify, the examiner will come up with the value. एग्जामिनर जो है वो आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा. वो कहेगा जी एम्पलीफिकेशन जो है वो आपने इतनी पॉइंट पे करनी है, और पीक जो एम्पलीट्यूड है उसकी आपने ये टीबीज देने हैं या ये पॉइंट देना है. जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कैम्ब्रिज जैसे क्वेश्चन देता है. यू माइट हैव नोटिस कि मैंने फाइल भी एक अपलोड की हुई है. सी, सो उसने कहा हुआ है कि decrease the pitch of the alarm ring to 700 hertz. So इसका मतलब ये है कि whenever they are talking about those specific options, they come up with the values. यदि आपको ये वैल्यू, you have to put in this value. और अगर वो देखो आपको ये कहता है possible without clipping, अगर वो कहता है क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर जाहिर है कि हमें पता है कि हम इफेक्ट्स में आते हैं और ये देखो अलाउ क्लिपिंग की ऑप्शन आती है. अगर तो वो कहता है क्लिपिंग होनी चाहिए तो बस जहाँ आके क्लिपिंग को ऑन कर देना. अगर वो कहता है क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए तो आप क्लिपिंग को जो है वो खत्म कर देना. क्लिपिंग जो है ये बेसिकली हमारी साउंड में छोटी छोटी जो है वो ऑप्शंस को हैंडल करता है. सेकेंड. सो क्लिपिंग का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हमारे पास कुछ साउंड जो है ना वो ओवर ड्राइव वो आउटपुट करने के लिए ना हो, यानी हर साउंड जो है वो अलग अलग जो है वो हमें सुनाई दे. तो अगर मैं इसको क्लिपिंग अलाउ कर दूंगा तो वो फिर अलग अलग नहीं सुनाई देगी, वो एक वो बन के आ जाएगा, एक मर्ज शेप जो है वो हमारे पास बन के उसकी आ जाया करती है. सो ये क्लिपिंग होता है. देन वी कैन क्लिक ऑन बेस एंड टेरेबल. ये तो हम सबको जाहिर पता है. अब मेरी जो वो साउंड है वो देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है. मैं यहाँ अगर बेस इंक्रीज करता हूँ, वैसे तो इसमें कोई बेस इंक्रीज करके बहुत आपको आइडिया नहीं, और करंट साउंड इज ये करंट साउंड थी. अच्छा, अगर मैं इसमें जो है बेस इंक्रीज कर देता हूँ, और वो जो आप YouTube पे देखते देर आर फ्यू साउंड्स के वो कहते हैं कि बेस ट्यूब टेस्ट कर लें उस पर. सो वो इस तरह से उसमें जो है वो बेसिस ऐड करते हैं.
सो यू माइट हैव नोटिस कि साउंड जो है वो थोड़ी सी एक लाइक द पॉसी साउंड किस्म की जो है वो हमारे पास आ गई। एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लिक हियर, मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ। एंड इफ यू इंक्रीज द टेरेबल ट्रेबल, और यहाँ से हम करते हैं इसको वो जो छन छन सी टाइप होती है वो हमारे पास जो है वो आ सकती है। एंड इफ इट इज अबाउट डीबीज, तो डीबीज इज द पॉइंट वेयर एग्जामिनर विल लेट यू नो कि नहीं हमें डीबीज इतने चाहिए। वैसे तो बेस और ट्रेबल के लिए भी वो आपको बताएगा कि आई नीड दिस काइंड ऑफ बेस, या वो कह देगा फुल बेस, या वो कह देगा हाफ बेस। तो जाहिर है अगर 0 से शुरू हो रही है तो हाफ बेस का मतलब यही है कि वो 50 पे आ जाएगी तो वहाँ हो जाएगी। और देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं इसको वापस 0 करता हूँ, ये ऐसे भी हो जाता है। यानी मैं इसको जब रिव्यू करूँगा, सो इट्स मोर ओवर लाइक द सेम थिंग। यानी सेम थिंग इज कि आप या तो ट्रेबल इंक्रीज कर लो या आप बेस को डिक्रीज कर लो, मतलब वो सेम ही किस्म की जो है वो साउंड आपको आएगी। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो सेम किस्म की साउंड आएगी। देन गेट इफेक्ट अगेन, इफेक्ट में हम जाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है वो आप स्पीड चेंज कर सकते हैं, वो जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में दिखाया। अब वो अगर कह रहे ना कि इसको आपने 700 हर्ट्ज पे करना है, तो देखो आई जस्ट हैव टू राइट 700 हर्ट्ज। मैं यहाँ जो है 700 लिख लूंगा तो 700 हर्ट्ज में चेंज होगी। अब उसमें पिच क्या बन रही है, उसमें एफ है, 5 है, 4 है, 3 है, कितने सैंपल्स होने हैं, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन दैट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। 700 किया, पहले 735 था, तो थोड़ा सा साउंड की जो पिच है वो चेंज हो जाती है। पिच का मतलब ये है कि हाउ लार्जर नोट्स इट टेक्स, कि वो हमारे पास साउंड जो है वो कहाँ तक जाती है। व्हाट वी डू जनरली कि अगर हम एक साउंड चलाते हैं एंड वी आर फीलिंग दैट कि वेरी देयर आर क्वाइट अ फ्यू रेड पार्ट्स, यानी हमारे पास जो है वो रेड पार्ट्स यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं साउंड के, तो इसका मतलब है इट्स ऑन अ हायर पिच, तो हम उसके पिच जो है वो कम कर देते हैं। ये जितना रेड जोन्स के अंदर ज़्यादा जाएगा उतना इट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्पीकर्स हेल्थ। ज़ाहिर है स्पीकर जो है वो फटना स्पीकर शुरू हो जाते हैं, वो इसी साउंड पे होते हैं। जब उनकी कैपेसिटी से इंक्रीज कर जाती है वैल्यूज, तो आपकी साउंड जो है वो might be it's not up to the mark, the quality is not up to the mark. Now what we can do, we can click on the effect again, and then we have a speed. You can change the speed of your sound, आप अपनी साउंड की जो है वो स्पीड चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड चेंज करता हूँ एंड रिव्यू करते हैं। जी क्या हुआ, मैंने कुछ 0.97 है तो जी सर, जब आप वो चलाते हैं ना ऑडियो, तो सर वो आवाज़ नहीं आती उसकी बिल्कुल भी, सिर्फ बहुत कम आती है। अच्छा चलो काम करते हैं। I'll do this, not this, and I am removing my headsets. कि इसके साथ मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा, ज़ाहिर है quite a much sound. So now I can do the original sound. यानी मैं पहले ओरिजिनल साउंड दिखाता हूँ और फिर मैं आपको स्पीड चेंज करके आपने मुझे बताना है। चेंज स्पीड किया एंड वो वही हो गया, इसको मैंने 1 पे किया, ये ओरिजिनल साउंड है। जी अब्दुल्ला, अब आई आवाज? बाकी लोगों को अच्छा। सो अब आपने देखा कि ये ओरिजिनल साउंड था। नाउ व्हाट आई कैन डू, मेरी आवाज भी ठीक आ रही है? चले, दैट्स ग्रेट। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं इसको जो है मैं इसको थोड़ी सी इसकी जो स्पीड मल्टीप्लायर है मैं 1 से 0.8 के ऊपर ले गया। नाउ प्रीव्यू हम करते हैं। क्या हुआ? What was the difference between original sound and this 0.8 sound?
What do you think, Etsam? So basically, what happens, the sound is स्लोअर डाउन, यानी वो जब हम कहते हैं ना वो स्पीड हमारे पास स्लो हो जाती है, तो वो स्पीड हमारे पास जो है उसकी स्लो हो गई। और मैसेज में भी मुझे लगता है कि यही कहा है, सर माय माइक इज वर्किंग, आई होप योर स्पीकर इज वर्किंग which is right now is a requirement. So हमारे पास क्या होगा कि साउंड जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। स्लो का मतलब ये है कि वो मतलब प्लेबैक साउंड, प्लेबैक टाइम जो है वो हो जाएगा। अब ये देखो, मैं अगर इसको 1 से ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, तो तेज चलना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि अगर इसको तेज करूंगा तो वो ज्यादा तेज चलना शुरू हो जाएगा। मैं फिर प्रीव्यू करता हूँ। सो यू कैन नोटिस दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स, ये डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स हैं हमारे पास, और इन इफेक्ट्स के साथ जो है वो आप एक बड़ी जबरदस्ती साउंड जो है यू कैन क्रिएट दैट। तो मैं इसको फिलहाल ओके करता हूँ, तो ओरिजिनल फॉर्मेट जो है वही रहने देते हैं। ये प्लेबैक साउंड जो है ये अगर आपने स्लो और फास्ट करनी हो तो वो आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं। तो देखो, मैं अगर इसकी स्पीड जो है 1 से ज्यादा करता हूँ, उसको प्ले करता हूँ, बट इट्स जस्ट फॉर लिसनिंग कि आप अगर सुनना चाहते हैं कि वो कैसे काम कर रही है, वो देखने के लिए देखते हैं। So what I do, I fix it again to 1. मैं इसको 1 This is the original, जरूरत नहीं है। की भी जरूरत नहीं जो है वो लेट्स से मैं इक्वल ऐड करता हूँ 0.5। ये वो जब आप कभी सो दैट इज इको। सो अगर हम इको जनरेट करना चाहें तो वो इको भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको अगर करता हूँ 0.9 के ऊपर, 0.9 तो कम होगा, 0.4 पे करते हैं। सो देखिए, दूर दूर से जैसे पहाड़ वाला माउंटी साउंड का सिस्टम होता है, वो वाला साउंड का सिस्टम हो जाता है। और अगर हम नहीं करते तो हम नहीं करते। ये हमारी ओरिजिनल साउंड। सो हम जो है वो इसको ऐसे कर देते हैं और हम इसको फिर एक दफा चला के देखते हैं सही काम कर, जी सही कर। फिर इफेक्ट पर क्लिक करते हैं एंड देन वी हैव एन अदर ऑप्शन व्हिच इज कॉल्ड एज लेवलर। लेवलर में जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के लेवल्स होते हैं, जिसमें हम मॉडरेट भी कर सकते हैं अपनी साउंड को, एक लाइट उसमें भी लेके आ सकते हैं, थ्रेशोल्ड भी बता रहा है आपको, और एक हैवीएस्ट में लेके आता हूँ तो ये एक नंबर्स के साथ अगर मैंने अपनी साउंड को लेवल करना हो तो हम इसको ऐसे भी लेवल कर सकते हैं। देन वी हैव नॉइज रिडक्शन। नॉइज रिडक्शन भी ऐसे वैल्यूज ही हैं, यू हैव टू पुट इन द वैल्यूज, आपके पास जो है वो नॉइज रिडक्शन हो जाएगी। अब देखो यहाँ एक बड़ी जबरदस्त चीज है जिसको हम रीवर्ब कहते हैं। रीवर्ब में देखना क्या काम होगा साउंड सेलेक्ट की। अब ये देखो डिफरेंट बता रहा है, रूम साइज कितना बड़ा है, प्री डिले, ये वो। और अगर यहाँ से ना समझ आए तो व्हाट यू कैन डू, वो आपको कहेगा एग्जामिनर की जी साउंड मस्ट लुक लाइक दैट इफ इट इज कमिंग फ्रॉम हमारे पास जो है, लेट्स से कि ये हमारे पास आ रही है फ्रॉम maybe it's coming from the bigger hall. So what we can do, we just have to click on the manage and then we can click on the factory presets. You can notice कि मैं अगर यहाँ cathedral करता हूँ, cathedral,
बड़ा हॉल होता है, चर्च टाइप की चीज, और मैं इस पे जब ओके करता हूँ, सो यू कैन नोटिस कि वो जो हो का इफेक्ट है दैट हैपेंस देयर। और if it's like जी, so this is how you sound when you are trying to be a bathroom singer. So वो वाली साउंड जो है वो हमारे पास आ जाती है। यानी it basically working with कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, how big it is and how it creates that effect. If you are working in a small room, it means कि small room में जो है वो हमारे पास different तरीके से आवाज आएगी। जैसे ये हमारे पास आ गई है और मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ small room के अंदर, तो different तरीके से जो है वो हमारे पास आएगी। सर मुझे आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? सर अच्छा, लेट मी चेक, इसको कैंसिल करता हूँ, लेट मी चेक। I think internet, yes. Let me share again. Let me share again, and you will get. You might get the screen back. So बड़ी बात है, मैंने तो डिस्कनेक्ट ही कर दिया। So did you get back your screen? नो सर। नो सर। नहीं आई? ये सर आ गई। सर अब आ गई। अच्छा जी, सर ये रिवर्ब वाला आप प्लीज दोबारा आपके बता पास भी आ दें। गई? So for reverb, we have to click on effects. Effects के बाद सर एक we लेवल have अप वाला भी बता दें एक दफा option named as reverb. मैंने reverb पे क्लिक कर दिया। reverb पे, अच्छा मैं बताता हूँ। So reverb पे क्लिक कर, effectively set. You can do the settings from here. यानी आप अगर यहाँ से करना चाहें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप सामने नजर आ रही है, ग्रुप साइज खुद बता दें, सब चीजें बता दें। तो जनरली जो है वो आपको बताता है, एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि you have to pick the sound, it sounds like that is coming from the bigger halls. तो कैथेड्रल लेट्स से हम करते हैं, और कैथेड्रल करने के बाद जब मैं आपको प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखना, सो ये आपने अगर देखा है तो हमारे पास क्या हुआ कि वो हमारे पास एक बड़े हॉल जैसी आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज को कि अगर मैं यहाँ इसको हॉल को छोटा कर देता तो जाहिर है फिर डिफरेंट किस्म का हो जाता। वोकल तो है ही नहीं इसमें खैर, लेकिन अगर इसमें वोकल होता तो वोकल हाई हो जाता और साउंड कम हो जाता। कई दफ़ा यू नोटिस कि देयर आर फ्यू सॉन्ग्स कि जिसमें वोकल बिल्कुल दबी जाता है और वो साउंड ही साउंड आ रहा होता है। सो उस सूरत में जो है वो फिर यहाँ से उसकी सेटिंग की जाती है कि छोटा मोटा हम उसको सेट कर लेते हैं। अब देखो अगर मैं स्मॉल रूम कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने स्मॉल रूम किया है, तो स्मॉल रूम के अंदर जो है मेरे पास ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट किस्म के हैं। अब उसमें आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी सेटिंग बना सकते हैं। और अगर मैं इसको वेट कर देता हूँ तो वो आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी गीली हो गई है, वो गीली मतलब पार्टीज आपकी टी पार्टीज हैं, जो मर्जी लगाई जाए। सो मैं अगर इसको वेट कर देता हूँ तो कि अगर आपका छोटा कमरा होगा तो उसकी ज़ाहिर साउंड डिफरेंट किस्म की होगी। अगर हमारे पास कोई बड़ा कमरा होगा तो उसकी साउंड जो है डिफरेंट किस्म की होगी। सो उसको ठीक करने के लिए जो है वो आमतौर पे हम लोग यहाँ आते हैं। इसके बाद लेवलर हमने पहले से देखा था। लेवलर मैंने ये कहा था कि लेवलर जो है
it's basically a tool which limit the effects for reducing the dynamic range of audio. यानी आपकी ऑडियो की जो डायनेमिक रेंज होती है उसको लिमिट करने का जो है वो आमतौर पे ये काम कर रहा होता है कि अगर बहुत नॉइजी इन्वायरमेंट है तो वहाँ साउंड कैसे सुनी जा सके, यानी अगर हैवीएस्ट होगी तो इसका मतलब है कि आपका इन्वायरमेंट बहुत नॉइजी भी है तो उसमें भी वो साउंड है वो मेक सो इम्पैक्ट, जैसे मैं लाइट पे करता हूँ, ये एक लाइट सी नोट आपको जो है वो सुनाई दे रही होगी। एंड इफ आई डू द हैवीएस्ट, ये मैंने इधर गए और यहाँ से हमने कर दिया हैवीएस्ट। सो जब हम हैवीएस्ट करते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो साउंड जो है वो कोशिश करता है कि वहाँ आपको एक अलग पार्ट नजर आए। फिर हमारे पास देखो उसके डीबी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे -80 dB के ऊपर मैं करता हूँ, साउंड डिफरेंट स्टाइल की है। अगर मैं उसको -25 dB के ऊपर करता हूँ तो वो डिफरेंट स्टाइल की है। सो बेसिकली ये नंबर जो है ये जो सर एक मरतबा वो ओरिजिनल कुछ लगेगा सर, वो डिफरेंस नहीं पता लग रहा इस तरह। ओरिजिनल सुनो, हैवीएस्ट इसके अंदर साथ मैंने साउंड और थ्रेशोल्ड के साथ है हमारे और -80 वो और उसके चली जाती है। सो मैंने थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाता है उसका। सो मैं इसको वापस करता हूँ। इसको आप भी अपने पास करके देखिएगा, जब आप लोकल उस पर करेंगे हेडफोन्स लगा के तो यू हैव अ डिफरेंट फील, यानी यहाँ जो इसमें फील है और उस फील को बहुत डिफरेंट फील आप करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम दोबारा इफेक्ट में आते हैं और एक बड़ा प्यारा सा इफेक्ट है जिसे हम रिवर्स हमारे पास साउंड है। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से साउंड क्लिक कर देता हूँ। नाउ आई हैव डिलीटेड माय साउंड और दिस इज व्हाट आई लेफ्ट विद, ये मेरे पास साउंड है। और मैं ये करता हूँ कि मैं इतने हिस्से को यहाँ से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया। बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ स्टार्टिंग से लेकर 15 तक। कॉपी करने के बाद क्या किया, मैंने 15 के एग्जैक्ट बाद जो है, ये एग्जैक्ट बाद है, मैंने यहाँ इसे कंट्रोल V कर लिया, पेस्ट। देखो ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्टेड है। अब ये जो पार्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिवर्स। ये मैंने रिवर्स कर दिया। अब देखो मेरी साउंड कैसे काम करेगी। अभी उस पॉइंट पे आएगी तो आपको अंदाजा होगा। सो दिस इज द सेम ओल्ड साउंड जो मैं पहले देख रहा था, ये वही सेम साउंड है मेरे पास, लेकिन हो क्या रहा है कि साउंड जो है वो मेरे पास उल्टी हो गई, यानी मैंने उसको रिवर्स कर दिया। वो आई वॉज लिसनिंग टू I don't remember what radio channel, कोई FM I was listening and what the host was doing कि वो कह रहे थे कि जी आपको ये फलानी चीज़ मिलेगी if you guess the song, and what they did कि उन्होंने एक सॉन्ग था, उसी सॉन्ग को जो है वो ऐसे ही रिपीट पे लगा, उल्टा कर दिया,
रिवर्स कर दिया, तो वो जाहिर है जब रिवर्स कर देते हैं तो वो फील नहीं आती। अभी तो आप ये थोड़ी देर से सुन रहे हो ना साउंड जो है, तो फौरन पता लग जाएगा कि ये फलानी फलानी साउंड है। बट अगर हम फौरन ना सुन रहे होते और हम थोड़ी देर के बाद सुनते हैं तो वी माइट नॉट बी एबल टू गेस स्ट्रेट अवे। बट मतलब इट्स अ फेमस साउंड जो हम प्ले कर रहे हैं, तो ये तो हो जानी थी। बट जनरली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू guess in that scenario. Achha, now there are a few more things apart from this effect thing. So what you can do, you can stereo track to mono. Right now we have a stereo track. If you want to change our stereo track to mono, we can just click here और हमारा जो stereo track जो है वो mono में change हो जाएगा। साउंड में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको अभी फिलहाल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपका लैपटॉप जो है वो सिंगल मोनो साउंड ही आमतौर पर जनरेट कर रहा होता है, एक सिंगल स्पीकर लगा होता है और आप उसी से साउंड सुन रहे होते हैं। सो मे बी यू डिडंट गेट, यू माइट नॉट बी एबल टू लाइक इसके बहुत बड़ी फनकारी लग गई है, कोई बड़ी फनकारी ज़्यादा नहीं लगी, तो ये हमारे पास एक चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि whenever you are working with the effects and all that, so what you have to do कि आपने करना ये है कि आपने इस प्ले को ख़त्म करना है और आपकी उस वक्त जो साउंड है वो स्टॉप होनी चाहिए, पॉज नहीं होनी चाहिए। अगर पॉज होगी, लेट्स से कि ये पॉज है, तो आप देखें आपकी ऑप्शंस जो है वो काम ही नहीं करती होती अगर वो पॉज है, यानी वैसे चल रहा है, आपने पॉज कर दिया। अब जब पॉज करेंगे तो ये देखो ये सारी ऑप्शन हमारी काम नहीं कर रही है, तो फिर ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपने कोई फनकारी लगा दी है जिसकी वजह से वो हमारे पास जो है काम नहीं कर रही है। तो इसको पॉज को आप खत्म करें। सो यू ऑलवेज हैव टू क्लिक ऑन दिस, ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, आई डोंट नो हाउ आई हैव मिस्ड दैट। ये हमारे पास होता है इक्वलाइजेशन। अब इक्वलाइजेशन वी ऑल नो कि हम वो जो डेक शेक होते हैं उसके ऊपर, ये हमारे पास जो साउंड सिस्टम होते हैं उसके ऊपर हम क्या रखते हैं कि उसमें वो साउंड ऊपर नीचे चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ अच्छी आती है। दिस इज द सेम थिंग, आप उसी तरीके से जो है उसे चेक कर सकते हैं। देखें जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे यू विल गेट अ नॉट। जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जा रहा हूँ आई विल गेट माई नॉट्स। ये मैंने नॉट्स अपनी गेट कर दी, ये नॉट्स आ गए। अब मैं इस नॉट को कहता हूँ नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। देखो अब ये वो डीवीज वाला चक्कर आ गया, ये यहाँ से आ गई है एकदम ऊपर आई है और उसके बाद जो है वो ये यहाँ चली गई है। और ये जो बन रहा है आपके पास, ये जो ये कर्व बन रहा है, जाहिर साउंड है ना यार, कोई डिजिटल चीज तो नहीं है कि एकदम ही ऊपर चली जाएगी एकदम ही नीचे चली जाएगी। तो ये उसकी बेस के ऊपर एक एवरेज कर्व जो है वो क्रिएट कर रहा है। ये हम एक साउंड कर रहे हैं। अब देखो जब मैं शुरू करूंगा तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कि कहीं वो बहुत ऊपर चली जाएगी, कहीं वो बहुत नीचे चली जाएगी, तो वो हमारे पास इस तरह से भी हो जाएगा। और अगर ग्राफिक्स कर देंगे तो ये देखें ये नीचे हमारे पास वही चीज़ आ गई जो आप बचपन से हैंडल करते हैं कि आपने उसके हर्ट्स को जो है वो कम और ज़्यादा किस तरह से करना है। ये देखें ये हम जो है उसके इसको हैंडल कर रहे हैं। सो इट्स अप टू यू कि इफ़ यू वांट टू ड्रॉ व्हाट आई लाइक टू ड्रॉ। मुझे अगर कोई मुझे पर्सनली कहे कि जी आपने साउंड के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है तो मैं ड्रॉ करना जो है वो ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो ज़्यादा हैंडलिंग पावर होगी टू कंट्रोल द साउंड अराउंड। उसकी मैं सराउंडिंग्स और वो सब कुछ जो है वो मैं कर सकता हूँ। फ्लैटन करनी है फ्लैटन कर दो, ठीक है, फ्लैट हो गया सब कुछ। अब सीधी सीधी साउंड होगी। ये नहीं सीधी साउंड का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगी, सीधी साउंड का मतलब है तो ओरिजिनल साउंड जो हमारे पास है फ्लैट हो जाएगी हमारे पास। और अगर मैंने कोई कर्व बनाया होता और मैं उसको इन्वर्ट कर देता तो वो इन्वर्ट भी मेरे पास हो जाती है। तो ज़ाहिर फ्लैट है उसका कोई इन्वर्ट नहीं होगा। सो लेट्स से कि मैं इसको ग्राफिक्स में आता हूँ और मैं इसको ऐसे करता कि इसको मैंने ऊपर उठा दिया, इसको भी मैंने ऊपर उठा दिया। जो नए नए कुछ स्पीकर आए ना तो आमतौर पर सारी साउंड हम ऊपर ही उठाते जाते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट लेके देखें क्या आउटपुट हमें आती है। सो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद मेरे पास ये आ गया पॉइंट। अब मैंने इसको ऐसे किया, तो आपकी मर्जी है उसको जैसे मर्जी चेंज कर दें। तो मैंने चेंज किया। अब जब मैं इसे इन्वर्ट करूँगा तो देख रहे हो वो इन्वर्ट हो गया। अब जब मैं चलाऊँगा तो ये इन्वर्ट इन्वर्ट रिव्यू करते हैं तो वैसे रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जी सर आपने कौन से ऑप्शन को क्लिक किया था इक्वलाइजेशन करने के लिए? ओके मैं बताता हूँ। ये मैंने किया है इफेक्ट्स में इक्वलाइजेशन, दिस वन।
ओके सर, थैंक ठीक यू है, सो मच। मोस्ट वेलकम। सो ये हमने किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये ट्रैक्स में से हम लोग आमतौर पे करते हैं ये स्टीरियो ट्रैक टू मोनो, और आमतौर पे हम ट्रैक्स ऐड भी कर लेते हैं, जैसे मैं ऐड करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखो ये होगा, वो जो हम इधर और इधर साउंड सुनते हैं ना, वो वाली मैं साउंड, अगर मैं आपको चलो मैं वो सुनता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो इसको हम बंद करते हैं, ये हमें साउंड नहीं चाहिए। फाइल में गए और फाइल में जाके हमने इंपोर्ट की ऑडियो, और ये ले आते हैं ज़रा थोड़ी ज़रा हैपनिंग है। So you click here and now what I can do, I can add new, मैंने एक स्टीरियो ट्रैक जो है वो ऐड, मेरे पास स्टीरियो ट्रैक आ गया। वैसे मैं वहाँ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ ज़रा मेरे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा करना। इसको हमें पहले मोनो पे चेंज कर देना चाहिए, ट्रैक्स, इसको कर देते हैं मोनो। ट्रैक्स एंड न्यू, ये आ गया। अब देखो क्या होगा कि मेरे पास ये साउंड है, इसको मैंने ऐसे किया, इसको मैंने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसको मैंने यहाँ इस जगह के ऊपर पेस्ट कर दिया, और ये देखो ये हमारे पास वो मोनो था और ये हमारे पास जो है वो स्टीरियो है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ इस तरह से, और ऊपर वाले मामले को मैं कर देता हूँ डिलीट। अगर तो आप हेडफोन से सुन रहे हैं तो यू माइट नोटिस अ लिटिल डिफरेंस, आपको शायद थोड़ा सा डिफरेंस उसमें फील हो, बट कोई मेजर बहुत डिफरेंस शायद 2-3 बड़े स्पीकर्स के बगैर वो फील नहीं हो सकेगा। सो इफ आई प्ले फ्रॉम हियर, ये हमारे पास मोनो ट्रैक चल रहा है, जाहिर है नीचे वाले ट्रैक में तो है ही कुछ नहीं। क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी आपको शायद फील हुआ हो कि वो चेंज हो जाती है स्टीरियो के अंदर, यानी वो एक थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे एक मेजर सा इम्पैक्ट हुआ आना शुरू हो जाता है, तो यू कैन डू दैट आल्सो। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जब आपने फाइल बनानी है तो यू हैव टू एक्सपोर्ट योर ऑडियो, यू हैव टू क्लिक हियर एंड देन यू हैव टू एक्सपोर्ट योर ऑडियो। So you can export your audio. I just have to click here and then now this is my export audio, and you can select whatever the type we need. Generally MP3 files. I told you कि हमने उसे कैसे करना है। ये उसने बताया होगा कि उसको क्या रखना है, प्रीसेट रखना है, वेरिएबल रखना है, एवरेज रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है। ये हमारे पास 3-4 चीजें, ये आप रखेंगे। अच्छा, now about the assignment. If you have seen your this BB, the Partrik Marif, the LMS जो इनका है उसको आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें नीचे एक असाइनमेंट भी लगी हुई थी, इसका नाम असाइनमेंट नंबर 2 था। I'll show you how it works to understand that कि आपकी पहली असाइनमेंट है on the proper basis of कैसे हमारे पास कैम्ब्रिज में पेपर्स आते हैं। आपको मैंने एक ये वाली फाइल जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये वाली फाइल डाउनलोड होगी, असाइनमेंट 2 ITAS करके। व्हाट यू हैव टू डू, अगर तो आपने इंस्टॉल किया हुआ अपने पास WinRAR या WinZip, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि अनजिप कर सकता है इसे, यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक एंड आफ्टर राइट क्लिकिंग इट यू जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट फाइल्स। जब आप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो पूछेगा कहाँ, तो आप उसे बता देना डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आपने उसे रखना है, वो ये लोकेशन बता देना, इस तरह एक फोल्डर आ जाएगा, ये फोल्डर आपके पास आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर क्या होगा कि यू हैव अ क्वेश्चन पेपर, QP इज अ क्वेश्चन पेपर, एंड क्वेश्चन पेपर इज विद बेसिकली ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। टोटल जो है यू हैव 4 टास्क टू अटेम्प्ट। देख रहे हो ऊपर एक पूरी उसने कहानी सुनाई है कि कैसे कैसे क्या है, इसको पढ़ लेना। और उसके बाद यू हैव टोटल 4 टास्क टू अटेम्प्ट, जिसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक साउंड है, क्लॉक, टिक। अब ये साउंड किधर है, ये जितनी फाइल्स बीच में लिखी होती है ना, नीचे भी उसने मेंशन किया हुआ साउंड फाइल्स आर प्रोवाइडेड दिस, यानी 3-4 फाइलें उसने कहा कि जो उसने प्रोवाइड की हुई है। These files generally are in SF folder. SF means supporting files. ये हमारी अपनी नॉर्म्स हैं IT की,
हमारे पास क्वेश्चन पेपर अलग होता है, सपोर्टिंग फाइल्स अलग होती हैं। सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं, इनकी बेस पे हम काम करते हैं। देखो ये फाइल्स हैं, दीज आर द ओरिजिनल फाइल्स राइट नाउ। और इसके ऊपर फिर जो हमने कमी बेशी करनी है, हम इन फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे जैसे जैसे वो कहता जाएगा और हम पूरा करते जाएंगे। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आप ये देखना कि हमारे पास ये पहली फाइल एक फाइल बनती है, उसी फाइल को वो दूसरी में खुलवाता है, जाता है फिर नए नाम से। देखो वो कह रहा है कि जी यहाँ आपने टाइमर 2 डॉट, यहाँ टाइमर 1 बनाई, वो कह रहा है टाइमर 1 को यहाँ ओपन कर लेना। फिर टाइमर 2 बनती है, वो टाइमर 2 यहाँ आके ओपन हो जाएगी, फिर टाइमर 3 बन जाएगी और एंड में हमारे पास टाइमर 4 बन जाएगी। बट यू हैव टू सेंड मी टाइमर 4.mp3, दैट्स इट। आपने मुझे तीनों चारों फाइल्स नहीं भेजी, आपने मुझे सिर्फ टाइमर 4 वाली फाइल सेंड करनी है और कोई फाइल आपने मुझे सेंड नहीं करनी। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एक असाइनमेंट है जो आपने करनी है। थर्सडे को मैं आपको साउंड की ही एक और असाइनमेंट दूंगा जो फिर आपने ओवर द वीकेंड करनी होगी, और दैट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट। आप यू विल एंजॉय दैट। ये तो थोड़ा सा जरा ये है कि जरा सॉफ्टवेयर का यूज टू हो गए, और जरा ये भी है कि मैं ये चाहता हूँ कि यू सी कि जी कैसे एग्जामिनर इज यूजिंग, व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज एग्जामिनर इज यूजिंग, कैसी लैंग्वेज यूज हो रही है, उसको हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, वो हमारे पास जाता है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, anything you want to ask, you can। सर आपने असाइनमेंट्स कहाँ से हमने ले लिए हैं, ये दोबारा बता देंगे प्लीज। ये आपका जो लेक्चर जहाँ पड़ा हुआ है, आप सर मेरे जहाँ जब पोर्टल का इशू आ रहा है, मैं नहीं कर सकती, पोर्टल नहीं ओपन कर सकती। अच्छा चलो, ये जब सब चले जा रहे होंगे ना, आपने अभी नहीं जाना, आप मुझे ईमेल बताना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। और यही सबमिट करना होता है, तो बेटा आप फिर सबमिट जो है मुझे ऐसे ही ईमेल भी कर देना। बाकी लोग जो है वो इसी में सबमिट करेंगे जो सॉफ्टवेयर उनके पास है। और कोई सवाल? आपने पेंसिल का बताना था, मेरे पास आपको। ओह यस, ओह यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने आपको पेंसिल का बताना था और मैं भूल जाता, इफ यू डोंट रिमाइंड मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम, या सो नाउ इट्स अबाउट के मैंने, हाँ वो तो मैंने वो खुद ही हो जाती, मैंने क्या करना है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लिक हियर, और देखना बड़ी मजेदार चीज होगी कि मैं ये पेंसिल पे क्लिक करता हूँ। जब मैं पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ साउंड पे क्लिक करूंगा ना, मुझे करने नहीं देगा, कहेगा नहीं ये नहीं अभी ठीक था। हम साउंड को इतना ज्यादा प्रिसाइजली सेट कर सकते हैं कि देखो यहाँ तो किसी जगह पे होता है ना वो गाते गाते, इसलिए तो कहते हैं स्टूडियो की साउंड जो आती है, यानी स्टूडियो में अगर कोई गाता है, एल्बम बनाता है, तो वो साउंड बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू लाइव गाता है। मुझे नहीं पता कि इज अ गुड सिंगर और नॉट, बट मैंने एक दफ़ा एक बड़ा मशहूर आजकल का सिंगर है आसिम अजहर, मैंने उसको किसी लाइव कॉन्सर्ट में सुना, और पता नहीं अनफॉर्चुनेटली मुझे तो मज़ा नहीं आया उसे सुन के, मुझे तो ऐसा लगा कि वो सारी बहुत फजूल उसकी आवाज़ है। बहरहाल इट्स माय व्यू। सो व्हाट वी कैन डू, हम देखो यहाँ जो है ना, वो मैं इसको मैग्नीफायर को लिया और मैं साउंड को मैग्नीफाई करता जा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल उसको, ये जो पार्ट आए हैं ना, देख रहे हो, ये वो पार्ट है कि जब पेंसिल आई होप काम करेगी, या वो कहेगा और करें, नहीं वो कह रहा और ड्रॉ करेंगे। इसको हम और ऐसे करते हैं, देख रहे हो, ये है जहां पेंसिल काम करेगी। अब देखो बिल्कुल प्रिसाइजली, यानी पॉइंट 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 के अंदर सेकंड्स में आके, आपको लगता है नहीं साउंड ठीक यहाँ नहीं आ रही है, थोड़ी सी ऐसे हो जाए तो ठीक हो जाए, यहाँ थोड़ी सी ऐसे हो जाए तो ठीक हो जाए, आप इस हद तक इस पर वर्किंग कर सकते हैं। बट अगर आप मुझे ये कहेंगे कि जी इसका इफेक्ट मैं आपको सुना सकूं, तो वो मैं बड़ी माजूर हूँ, मैं आपको नहीं इफेक्ट उसका सुना सकूंगा। उसका रीजन मेरा ख्याल है कि आप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इतनी सेकंड्स के अंदर ये हो रही है। मैं भी आपको प्ले करके बताता हूँ तो ऐसे गुजरेगा जैसे maybe we might be able to see some impact
फिर हम वॉइस को स्लो कर लें, स्पीड स्लो कर लें, तो फिर हमें पता लगेगा इफेक्ट का। कहाँ वो हमारे पास 10 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड्स का वो गैप आ रहा था। अब देखो हमारे पास 6.82 का आ रहा है। मैं इसको जब प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने प्ले किया, इसको मैंने ऐसे किया, ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, देख रहे हो कि किस स्पीड से वो मेरे पास से गुजरा है। सो वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसका डेफिनेटली इफेक्ट होता है। और ये जो साउंड हम लेके आते हैं, ये सिर्फ एक क्लिक के दौरान देखो मैं वो 8 9 पे पहुंच गया हूँ, ये सब मेरे पास जो है वो चल रहे हैं। स्लो करके भी हम देखते हैं कैसे ये होता है। like it. तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, नहीं यहाँ से चलाना, स्लो करके यहाँ से चलाना, ये शदीद स्लो है इसमें। सो अगर मैं इसे थोड़ा सा तेज करता हूँ, ये सर्किट नहीं, वो बहुत स्लो है और वो बहुत छोटा है। जो हम दो सेकंड 3 सेकंड का एक साउंड सैंपल लेना, उसमें सब साउंड सैंपल्स को ऊपर नीचे करके जैसे आपका दिल करेगा वैसे आप कर देना। तो फिर आप सुनना वो 2-3 सेकंड को, फिर आपको जरूर इम्पैक्ट जो है यू कैन फील दैट। सर आप अपनी बात और कोई रिपीट क्वेश्चन? कर अच्छा, यहाँ देंगे? एक और बड़ी मुद्दे की, मैं क्या कर दूंगा? सर आप अपनी बात प्लीज रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी जब आप बोल रहे थे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास ये जो हम साउंड के सैंपल्स लेते हैं, बहुत छोटा, प्रिसाइजली वी कैन मैनेज देम, बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ 2 सेकंड क्लिप, और उस 2 सेकंड के क्लिप के ऊपर जो है यू कैन वर्क विद द पेंसिल, एंड देन यू माइट नोटिस कि आवाज में क्या फर्क पड़ा। इतनी बड़ी साउंड में जो 4 मिनट की साउंड है या 5 मिनट की साउंड है, उसमें ये मिली सेकंड जो है वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, जाहिर है वो ऐड कर दो। ये देखो मैंने यहाँ क्लिक, ये होता है। तो चलिए, have fun and please submit your assignment